Hello, dear students. How are you? I hope you all are well at your home. Today, once again, I have come before you with a new video, and today we will study about tense in this video. My dear students, this chapter has been covered into two parts. In first part, we will study about the definition of tense and we'll see its different parts. And in second part, we will study about past tense and future tense. It's my sincere advice to all of you to please be with the video from beginning till end. Then only you will be able to understand the things properly. Let's start. Tense, a complete study. Part 1. The word tense has been derived from the Latin word tempus. The meaning of this Latin word tempus is time. It means tense is termed as time. My dear students, ये जो टेंस हम लोग स्टडी करते हैं ये लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया जिसका मतलब टाइम होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? Tenses play a crucial role in the English language. The word or phrase which denotes time is termed as tense. Tense is a verb-based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking. यहाँ से स्टूडेंट्स क्लियर है कि टेंस का रिलेशन टाइम से है या ऐसे कह लेते हैं कि टाइम को ही टेंस कहते हैं और इस टेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी भाषा में बहुत बड़ा रोल होता है जिसको हम लोग और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे आगे. एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि टेंस वर्ड की ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से हुई है और इसका मीनिंग है टाइम. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ टेंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर? तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम there are following types of tense. Number 1 is present tense. What is present tense? Present tense is now. The thing you can see on the screen, this is present. So present tense is now or any time that includes now. Number 2 is past tense. Past tense means before now. अब से पहले जो था, that is past tense. And third one is future tense. Future tense means after now. इस समय के बाद जो कुछ भी आएगा, that is future tense. On the basis of nature of time, tenses have been classified as given below. अभी हम टेंस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे. यू हैव सीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: present tense, past tense and future tense. Now on the basis of nature of time we are going to see how many types of tenses: uncertain or indefinite. Number 2 is progressive or continuous. Number 3 is perfective or perfect. Number 4
perfect progressive or perfect continuous. So these are the nature of time. Once again I'm repeating, uncertain और indefinite मीन्स जहां पर किसी तरह की निश्चितता ना हो, समय की निश्चितता ना हो, कब से कब तक, इस तरह की जो बात आती है दैट इज अनसर्टेन इनडेफिनिट। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर आपको लगे कि कोई भी ऐसा समय है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार हो रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। परफेक्टिव और परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स जो भी आपका वर्क था, जो भी आपका दिया गया समय था उसमें वर्क हो चुका है। एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एक तो प्रोग्रेसिव है, इसमें इट मीन्स कि वर्क कंटिन्यू रहेगा, और इसमें परफेक्शन यानी कि टाइम में परफेक्शन आपको मिलेगा, टाइम क्लियर आपको इंडिकेट होगा। तो नाउ we have already seen there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense, and all these three tenses will have four more parts, and these parts are present, past, future, indefinite tense. Means present indefinite tense, past indefinite tense, and future indefinite tense. Next one is present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Next one is present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. And last one is present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. So this way we have seen there are three main types of tenses, and it has been classified on the basis of nature of time into four more subparts. Now we are going to see the examples. The child weeps for milk. This is present tense. Number two, Meena swept the room nicely. This is past tense. My dear students, ये कैसे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, विच आई डिस्कस further. Next is Ajay is going to catch his flight on Monday. This is future tense. The entire world is facing the pandemic COVID-19. This is present tense. She had seen many ups and downs in her life. This is past tense. One more example is there. I shall join your academy. This is future tense. So you have seen present tense, past tense and future tense examples. Now we are going to see present indefinite tense. अब कैसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे, कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, all these things you are going to see in this section. Present indefinite tense, what is definition of present indefinite tense? Whenever the time of action in a particular sentence based on present tense is found uncertain, that is termed as present indefinite tense. कहने का मतलब यह है कि जब कभी कोई भी टाइम ऑफ एक्शन किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, प्रेजेंट का कोई टेंस हो, वर्तमान में कोई घटना बताई जा रही हो जिसमें टाइम ऑफ एक्शन अनसर्टेन हो, मतलब पता न चले कि वो एक्शन, वो काम कब शुरू होता है, कब तक चलता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अगर यही चीज़ आपको पास्ट में मिल जाए तो पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, मतलब पास्ट में भी अगर अनसर्टेनिटी दिख जाए टाइम ऑफ एक्शन के संबंध में तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। यही चीज़ अगर फ्यूचर में भी आपको दिख जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो लेट अस सी मोर थिंग्स, मोर एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल नंबर 1, शीतल टीचेज हर सब्जेक्ट वेरी वेल। एनालाइज कर लेते हैं, शीतल टीचेज हर सब्जेक्ट वेरी वेल। हम यहाँ टेंस को स्टडी कर रहे हैं, टाइम को स्टडी कर रहे हैं। शीतल टीचेज हर सब्जेक्ट वेरी वेल में क्या आपको पता चल पा रहा है कि शीतल अपनी टीचिंग कब स्टार्ट करती, किस टाइम पर स्टार्ट करती? क्या आपको इस सेंटेंस से ये पता चल पा रहा है कि शीतल जो टीचिंग करती है वो कब तक करती है? तो दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। इट मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरुणिमा प्लेज हारमोनियम। फिर वही क्वेश्चन, प्लेज इज वर्ब। टाइम ऑफ एक्शन को अगर हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करें कि हारमोनियम प्ले करती है, अरुणिमा हारमोनियम प्ले करती है, तो कब करती है, कब तक करती है, ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि दिस सेंटेंस ऑल्सो बिलोंग्स टू प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। कब नहीं मानते हैं, कब तक नहीं मानते हैं, ये क्लियर नहीं है। सो इट इज प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। In the same way, the greengrocer sells his articles in the market. And the next example is the doctor prescribes medicines to the patients. सारे sentences में my dear students टाइम ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, इस वजह से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंटैक्स क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमें आपको ये बताना है। इससे पहले कि मैं सिंटैक्स बताऊं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमें उन 5 में से सिर्फ 2 टाइप्स के सेंटेंसेस पर आपको अपने सिंटैक्स को देखना है, बनाना है। ये जो 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, पहला होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस पर अपना सिंटैक्स देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले जो आपको ध्यान देने की बात है, दैट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट कैटेगरी? सब्जेक्ट इज ही, शी, इट or any singular number. Then you have to use first form of main verb, it is also known as base form of verb, and you have to add s or es in that base form of verb. After that you will use object and complement. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नंबर है तो ही आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे और उसमें यस या फिर ई एस को ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की बारी आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इज ही जम्प्स वेरी हाई। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ही है, जंप मेन वर्ब है, उसमें एस को ऐड किया गया तो जंप्स हो गया, ही जंप्स वेरी हाई। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में अगर इसका मीनिंग बताएंगे तो मतलब होगा वह बहुत ऊंचा कूदता है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, ही जंप्स वेरी हाई। ही इज सब्जेक्ट, जंप इज मेन वर्ब, एंड वी हैव एडेड एस इन दिस जंप, एंड इट इज नाउ बीइंग explained as present indefinite tense. Number 2 is she chops potato quickly. She is subject, chop is main verb, and as we have added, and now the sentence is becoming she chops potato quickly. Now next example is Manoj pushes the load on trolley. Manoj is subject belonging to singular number. pushes आप देख सकते हैं ई एस का यूज किया गया, बेस फॉर्म होता है पुश, उसमें ई एस यूज़ किया गया। जनरली ई एस कहाँ यूज़ करते हो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, ओ हो या फिर एक्स हो,
वहाँ पर हम ई एस को ऐड करते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है सब्जेक्ट कैटेगरी आपकी क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पूजा गोज टू हर ऑफिस टाइमली। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही आपका ये बन रहा है। और इसके बाद हम दूसरा जो सिंटैक्स देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस पर। इसमें सब्जेक्ट कैटेगरी क्या है, आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नंबर। देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ओनली एंड देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट कैटेगरी आई, वी, यू, दे और या फिर कोई प्लूरल नंबर है तो सिर्फ बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ ओनली। वी ऑलवेज पुट आवर efforts to get success. Number 3, you blame us for no reason. And number 4, they support the move of government. So you have seen. And last example is people try to revolt against the administration in crisis. तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने जो ब्लैक वाले लेटर्स है उसको देख लिया, ये वर्ब है, वर्ब का बेस फॉर्म है। और इन ब्लैक लेटर्स से पहले आप देख सकते हैं क्या सब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट आई है, नंबर 2 में वी है, नंबर 3 में यू है, नंबर 4 में दे है और नंबर 5 में पीपल यानी कि एक प्लूरल नंबर है। तो सब्जेक्ट कैटेगरी अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है तो हम सिर्फ बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी आपने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देखा है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिंटैक्स बेस्ड ऑन नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ दिस सिंटैक्स बेस्ड ऑन नेगेटिव सेंटेंस? रूल वही है जो भी आपने पीछे देखा है पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा जो कि पीछे नहीं था। सब्जेक्ट एक बार फिर से वही है, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नंबर हो। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यहाँ पर डज मिलेगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट को आप यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने देखा था कि एस या ई एस को ऐड करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जब आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो एस या ई एस बेस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले द गेम ऑफ डाइस। डज आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है और प्ले उसका मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डज नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। शी इज सब्जेक्ट, डज इज हेल्पिंग वर्ब एंड हाइड इज मेन वर्ब। माई फ्रेंड डज नॉट टेक हिज स्टडीज सीरियसली। Shubham does not care for his colleagues. And sentence number means syntax number 2 for negative sentence, subject I, we, you, they या प्लूरल नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, बेस फॉर्म लगाएंगे मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस syntax? Number 1 is I do not believe in bribery. We do not take undue advantage of helpless people. They do not tackle criminal cases. And next one is the spectators do not stop hooting during match. My dear students, अगर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो सजेशन ये है कि आप उसकी मीनिंग डिक्शनरी से देख लें और समझें उसको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 3 फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट हो सकता है, आई, वी, यू, दे हो सकता है, सिंगुलर नंबर हो सकता है, प्लूरल नंबर हो सकता है। इसके साथ हम नेवर, नेवर को हिंदी में कहते हैं कभी नहीं, इसके साथ नेवर लगता है। अगर सब्जेक्ट कैटेगरी आपका फर्स्ट वाला है यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर वाला है तो नेवर लगाने के बाद आपको
बेस फॉर्म में एस या ई एस को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका सेकंड कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी मीन्स आई वी यू दे या फिर प्लूरल नंबर का है, तो नेवर के बाद सिर्फ बेस फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या एस ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही नेवर बिट्रेज हिज फ्रेंड्स। आप नेवर को तो देख सकते हैं लगा ही है, लेकिन सब्जेक्ट है ही, और इस वजह से बिट्रे जो बेस फॉर्म है उसमें एस ऐड किया गया है। ही नेवर बिट्रेज हिज फ्रेंड्स। सेकेंड एग्जाम्पल, चिल्ड्रन नेवर कीप साइलेंस इन एब्सेंस ऑफ देयर टीचर। आप देख सकते हैं चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है और नेवर को यूज़ किया गया, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज़ किया गया है वो सिर्फ बेस फॉर्म में उसका कीप है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पूनम नेवर मिसबिहेव्स विथ हर स्पाउस। पूनम सिंगुलर नंबर है और मिसबिहेव बेस फॉर्म है, लेकिन इसमें एस को ऐड किया गया, मिसबिहेव्स हो गया है। तो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट कैटेगरी। अगर नेवर यूज़ किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको सब्जेक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग बेस फॉर्म में एस या यस ऐड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वी नेवर अप्रिसिएट एबल प्रैक्टिसेस। And next example is, my never speaks the truth. Now we are going to see interrogative sentence syntax based on interrogative sentence for present indefinite tense. हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज को यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब आपने देखा डू और डज है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज को हम यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। एग्जाम्पल इज, डू दे वर्क हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट। डज द मॉनिटर मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। डज हीरा फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। डू यू अंडरस्टैंड वॉट योर टीचर्स टीच यू। ये आपके पहले सिंटैक्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स थे, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट सिंटैक्स बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ छूट गया है, दैट इज़ क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का ये सिंटैक्स है। जैसे अभी आपने ऊपर का सिंटैक्स देखा, सिंटैक्स नंबर 1, वही चीज़ ये भी है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर आ जाता है तो हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, उसका ये सिंटैक्स है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। प्लेसमेंट जो है वो नॉट का सब्जेक्ट के बाद का है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डज अनीता नॉट पुट हर नोज in my affairs. Do the children not make noise in Mrs. Kavita's period? Do you not interfere in my matter? आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट भी आया और सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। एक और एग्जांपल है, डज प्रताप नॉट डू स्कैम्स in the industry. Now next syntax based on present indefinite tense interrogative sentence is question word
plus helping verb do or does plus subject plus base form of main verb plus ऑब्जेक्ट एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल देखेंगे इस पर हम लोग. हाउ डज शी प्रिपेयर्स फॉर पीसीएस. वाई डू यू वेस्ट योर टैलेंट इन दिस विलेज. व्हेन डज द ऑफिसर पास हिज ऑर्डर्स. विच बुक डू दे अप्रूव फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड. तो ये आपने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे. सिंटैक्स के बेस पर उसको एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल्स. वाई डू आई नॉट कोऑपरेट विथ योर फादर. Which language do you not find convenient to study? How does the patient not follow the diet plan? Where does the nurse not find the surgical equipments? तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा. अब बारी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे. डेफिनेशन क्या कहता है. वेन एवर द क्लियर सेंस ऑफ टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट सीन बट इट सीम्स दैट वर्क इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, तो इट इज टर्म्ड एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मतलब जब कभी भी ऐसा हो कि आपको टाइम ऑफ एक्शन क्लियर तो ना हो लेकिन ये लगे कि प्रेजेंट में कोई वर्क कंटिन्यू है, चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. अगर पास्ट में वर्क कंटिन्यू होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. अगर फ्यूचर में वर्क कंटिन्यू दिखेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा. शर्त सिर्फ इतना है कि टाइम ऑफ एक्शन क्लियर नहीं हो. एग्जाम्पल्स देखते हैं. स्नेहा इज टॉकिंग टू मच ऑन डिसिप्लिन. पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स. I am laughing at your foolishness. She's teasing my child. And final sentence is they are trapping the culprit. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. इसको और अच्छे से हम समझेंगे सिंटैक्स के थ्रू. तो पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटैक्स क्या वो देखते हैं. सब्जेक्ट कैटेगरी है ही शी इट और सिंगुलर नंबर. हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिलेगा. हेल्पिंग वर्ब होगा इज और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी होगा. मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे. ऑब्जेक्ट है और फिर कॉम्प्लीमेंट है. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट इज द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1. ही इज पेंटिंग द वॉल. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग हर वेडिंग साड़ी. I am loitering here and there in search of you. Mohit is opposing the policies of government vehemently. तो ये आपने 4 एग्जाम्पल्स देखे हैं. उसको एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा. सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को यूज़ किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है. हेल्पिंग वर्ब ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज होता है. उसके बाद हमने बेस फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया. जैसे पहला सेंटेंस है पेंट, तो पेंट में आईएनजी यूज़ किया गया, पेंटिंग हो गया. सेकंड सेंटेंस में एम्ब्रॉयडर बेस फॉर्म में, उसमें आईएनजी यूज़ किया गया, एम्ब्रॉयडरिंग हो गया. थर्ड सेंटेंस में है वर्ब लॉइटर, उसमें आईएनजी यूज़ किया गया, लॉइटरिंग हो गया. और फोर्थ सेंटेंस में बेस फॉर्म है अपोज, आईएनजी यूज़ किए तो अपोजिंग हो गया. In the same way we are going to see the second syntax. Second syntax में subject category क्या है. you, we, they और प्लूरल नंबर. अगर इनमें से कोई आपको मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आर को यूज़ करते हैं. बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विथ आईएनजी यूज़ करते हैं. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल. यू आर disobeying your seniors.
We are trying to console the raised family. They are diving from the hilltop. The spectators are cheering up the players. ये एग्जाम्पल्स आपने देख लिए सेकेंड सिंटैक्स के बेस पर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट रूल बेस्ड ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब हम एम यूज करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with ing plus object and plus complement. And examples are: I am asking for your valuable advice. I am seeking help from my despotic friends. I am longing for a cup of cold coffee. आई एम को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपके सामने थर्ड सेंटेंस में आ रहा वैसे भी लिख सकते हैं. तो आई एम लॉन्गिंग फॉर अ कप ऑफ कोल्ड कॉफी. आई एम प्लानिंग टू विन द रेस. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम डिपॉजिटिंग द सिल्ट ऑफ रिवर हियर. Now we are going to see the syntax based on negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस का जो पहला सिंटैक्स है जैसे अभी आपने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस में, वही चीज़ यहाँ पर भी है. अंतर सिर्फ इतना है कि अब हम यहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि नॉट का प्रॉपर यूज़ कहाँ पर होता है. सब्जेक्ट आप जान रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी ही शी इट और सिंगुलर नंबर प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़. उसके बाद नॉट यूज़ करते हैं मतलब इज़ नॉट, या फिर शॉर्टकट में हम इजेंट भी कर सकते हैं. फिर बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. लेट अस सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1 इज तुषार इजेंट रिस्पॉन्डिंग माई कॉल. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तुषार इज नॉट रिस्पॉन्डिंग माई कॉल. शी इजेंट टेकिंग पेन एट हर स्टडीज. It is not raining now. He is not catching fish near the river bank. Now, second syntax for negative sentence: subject category you, we, they, or plural number. And with these subjects, we use helping verb are, and not is used just after helping verb. Then we use ing form of verb and then object and complement. Let us see the example. You aren't cooperative with us in search operation. थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. यू आरेंट कोऑपरेटिव लिखा, ये होगा यू आरेंट कोऑपरेटिंग. यू आरेंट कोऑपरेटिंग विथ अस इन सर्च ऑपरेशन. They are not helping the old ladies. The postmen are not taking risk to deliver the post in hotspot areas. And sentence number 4, we aren't allowing anybody to cross from here without checking. तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स थे नेगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बेस्ड. यहाँ पर अगर आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव का हो, नेगेटिव का हो या आने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको ये तो दिख रहा है कि वर्क कंटिन्यू है लेकिन उसका टाइम ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है. ये ध्यान रखना है आपको. अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक और सेंटेंस रह गया था सब्जेक्ट आई पर बेस्ड. तो आई होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम नॉट होगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ. आई एम नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस ड्यू टू लॉकडाउन. आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम इन स्लीपिंग. I'm not ignoring the guidelines of government regarding COVID-19. My dear students, आप जानते हैं ये कोविड पीरियड चल रहा है, तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना चाहिए. उसी पर बेस्ड मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए.
आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क नाउ. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कॉमन सिंटैक्स है. कॉमन सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट कैटेगरी चाहे वो ही शी इट हो, सिंगुलर नंबर हो, या फिर आई वी यू दे और प्लूरल नंबर हो. कॉमन सिंटैक्स बनाया क्योंकि अभी तक आपने समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट कैटेगरी का है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सब्जेक्ट अगर सेकंड कैटेगरी का है तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड कैटेगरी का है तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगा. इसलिए कॉमन सिंटैक्स है वो आपने समझ लिया अभी तक. कॉमन सिंटैक्स, क्वेश्चन वर्ड अगर आता है सेंटेंस में तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, इज, एम या फिर आर. सब्जेक्ट उसके बाद हम यूज़ करते हैं. अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विथ आईएनजी यूज़ करेंगे. फिर कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. Let's see the example. How are you staying here in this slum? Is she taking her diet properly? Where am I going with her mother now? Are you not taking my warning seriously? Why are they not submitting their admission form in the school office? Which horse is not running swiftly in the race? Am I cheating them? Is Neelam not investing in real estate? When are the lawyers going for strike? And final example number 10, are your relatives coming from China? Now we are going to see present perfect tense. What is the definition of present perfect tense? The definition of present perfect tense is the tense which indicates the completion of action of subject at present in a particular sentence. It is termed as present perfect tense. My dear students, यहाँ पर अगर आपको ये पता चलता है कि सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा. अगर यही चीज़ पास्ट में घटित होती है तो पास्ट परफेक्ट कहेंगे, और फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे. एग्जाम्पल से और क्लियर होगा. शी हैज़ स्टैम्प्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसने डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प लगाने का काम शुरू किया था जो कि अब प्रेजेंट में समाप्त हो चुका है, यानी कि अब वो काम बचा नहीं है करने के लिए. तो यहाँ से ये चीज़ जब भी क्लियर होती है तो हम उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं. अगर प्रेजेंट में दिख रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, यही चीज़ अगर पास्ट में दिखता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, फ्यूचर में दिखता तो फ्यूचर परफेक्ट होता. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव फिनिश्ड माई allotted वर्क. नेक्स्ट इज children have not conveyed your message to their parents. Reena hasn't rebuked the peon in the office. Who has seen courage? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर. अब हम सिंटैक्स को देखेंगे. सिंटैक्स बेस्ड ऑन अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस. सबसे पहला जो सिंटैक्स है सब्जेक्ट है. आप बार बार सब्जेक्ट कैटेगरी देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट कैटेगरी है. ही शी इट और सिंगुलर नंबर, ये फर्स्ट कैटेगरी का सब्जेक्ट है. इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज होता है. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होता है. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट. What is the example for this syntax? He has surrendered in the court today.
Arnab Goswami has condemned the dirty politics of Maharashtra. Second syntax based on affirmative sentences, आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट कैटेगरी है, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर, देन हेल्पिंग वर्ब हैव, मतलब इस सब्जेक्ट कैटेगरी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. व्हाट आर द एग्जांपल्स? लेट अस सी. I have punished the rogue employees. We have compared all the plans available on the website. Now we are going to see negative sentence. What are the syntax of negative sentence? Number one is subject he, she, it or singular number. Then we use helping verb has, then not or never, and then third form of main verb plus object and plus complement. What are the examples? Example number one is she has not instructed her students properly. Number two, Amar, the police inspector, hasn't arrested his own son. Now we are going to see the second syntax based on negative sentence. Subject I, we, you, they और प्लूरल नंबर कोई भी हो सकता है. हेल्पिंग वर्ब have, then not or never, then third form of main verb plus object and complement. Example number one, they have never leaked the confidential information. Number two, the workers haven't demanded for bonus. Now we are going to see syntax based on interrogative sentence. What are the syntaxes? Helping verb हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, नॉट की जगह नेवर भी लगा सकते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आपने देख लिया है कि परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. व्हाट आर द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस सिंटैक्स? हैज राहुल नॉट इंटीमेटेड यू अबाउट टुडेज मीट? हैव दे नेवर गॉन अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन? Next syntax is question word plus helping verb has or have, then subject plus not or never, then third form of main verb plus object and complement. Let us see the example. Example number one is, what have they done in the office today? How has she never protested against such discrimination? So these are the examples based on present perfect tense. And now today we are going to study about present perfect continuous tense. What is the definition of present perfect continuous tense? The sentence which depicts clear time of action and continuity of work at present is termed as present perfect continuous tense. मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्लियर टाइम ऑफ एक्शन हो, पता चले कि टाइम का पता चले कि एक्शन कब से स्टार्ट है, और प्रेजेंट में अगर ये हो रही है बात, ये काम, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं. अगर ये पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहेंगे, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहेंगे. एग्जाम्पल्स: आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 1999. Soumya has been dancing in the garden for half an hour. The laborers have been demanding to hike their wages since January. The shopkeeper has not been giving sugar to the card holder for 3 days. And sentence number 5, why does Deepak not been circulating the notice in the school since Monday? यहाँ जितने भी आप 5 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, सब में एक क्लियर टाइम ऑफ एक्शन है. कैसे है, क्या है, अभी इसी चीज़ को हम लोग सिंटैक्स के थ्रू क्लियर करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंटैक्स देखते हैं. सब्जेक्ट
कैटेगरी क्या है उसका, हेल्पिंग वर्ब क्या है। सब्जेक्ट कैटेगरी ही शी इट और सिंगुलर नंबर। देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी विल यूज़ स्पेशल वर्ड विच इंडिकेट टाइम, दैट इज सिंस और फॉर, एंड देन कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इट हैज़ बिन रेनिंग कॉन्टीन्यूसली सिंस मंडे। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इट है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है, और रेन में आईएनजी लगा, रेनिंग हो गया, और टाइम ऑफ एक्शन है मंडे, उसके लिए सिंस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमर हैज़ बीन इन्वेस्टिंग दिस केस फॉर 3 months। Next, syntax for affirmative sentence, subject category I, we, you, they, or any plural number. Then we use helping verb have been, ing form of main verb, then object, and after object we use a special word which indicate time, that is since or for, and finally we use complement. Example, students have been violating the norms of the school since Saturday. The beholders have been recreating themselves for 2 weeks. अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के सिंटैक्स को। सब्जेक्ट कैटेगरी आपने देख लिया है, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर। देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैज़, एंड आफ्टर हैज़ वी यूज नॉट बीन, मतलब हैज़ बीन के बीच में नॉट आता है। मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है। देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एंड सिंस और फॉर, एंड let us see the example. She has not been explaining her agenda for 5 minutes. Abhimanyu has not been reporting to his preceptor since July 2020. Now, second syntax, subject category I, we, you, they, or any plural number, then helping verb have, then not been, then ing form of main verb, then object, and after object since or for, and then complement. What are the examples for this syntax? You have not been responding or called since January. And next one is Mumbai police has not been doing its duty sincerely since June 2020. My dear students, यहाँ हैज़ छूट गया है। Now next is इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सिंटैक्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट बीन लगाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होगा तो सिर्फ बीन लगाएंगे, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी यूज सिंस और फॉर, एंड देन कॉम्प्लीमेंट. Let us see the examples. Has Manorama been sliding the heavy Almira by herself for 10 minutes? Has Anmol not been opposing the new teacher for 2 periods? And next syntax is question word, then helping verb has or have, then subject, then if it is interrogative negative we will use not, been, then ing form of main verb, then object, and since or for, and finally we use complement. Example, who has been demanding for ransom from you since last night? Why has Atul not been calling you since Thursday? तो ये आपने अभी तक देखा माय डियर स्टूडेंट्स, लंबा वीडियो है ये, लेकिन आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे. अब एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि हम सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे. तो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज़ एग्जैक्ट टाइम ऑफ वर्क, सच एज
नेम ऑफ डेज, अगर डेज का नेम दिखेगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। आप जानते ही हैं डेज का नेम क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, या कोई भी महीने का नाम हो सकता है, तो हम इसके साथ सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ ईयर हो सकता है 1957, 2012, 2009, या कोई भी ईयर हो सकता है। नेम ऑफ सीजन्स, कोई भी सीजन, समर, विंटर, रेनी, कुछ भी, उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। क्लॉक टाइम अगर आ जाए, घड़ी का कोई टाइम आ जाए, जैसे आप बताते हैं 3 o'clock, 8 PM, 2:45 AM, तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। फेज ऑफ डे आ जाए, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो हम उसके साथ सिंस लगाएंगे। एग्जाम्पल्स, जैसे सिंस फ्राइडे हो गया, सिंस संडे, सिंस जुलाई, सिंस दिसंबर, सिंस 1983, सिंस ऑटम, सिंस विंटर, सिंस 5 PM, सिंस 10 o'clock, एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे यूज ऑफ फॉर। फॉर में क्या होता है, हम यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, मतलब ड्यूरेशन बताते हैं, टाइम का ड्यूरेशन बताते हैं। सिंस में आपने पॉइंट ऑफ टाइम देखा, एग्जैक्ट टाइम होता है, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ वर्क है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो हम देखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड वीक्स हो सकता है, जैसे 2 days हो सकता है, 3 weeks हो सकता है, कुछ इस तरीके से 3 year भी आप कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मंथ, 4 month, 6 month, इस तरीके से जब मंथ का ड्यूरेशन आएगा तो ड्यूरेशन ऑफ ईयर हो गया, जैसे 2 year, 5 year, 10 year, 12 year, कुछ भी हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स हो सकता है, 5 minute, 2 minutes, 2 hours। ड्यूरेशन ऑफ इंडेफिनिट टाइम, जैसे फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, फ्यू ईयर्स, इस तरीके से हो सकता है, तो हम फॉर यूज़ कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर 3 days, फॉर 6 weeks, फॉर दिस ईयर, फॉर 3 months, फॉर अ फ्यू ईयर्स, फॉर 10 minutes, एंड सो ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। Dear students, I hope you have seen the video properly till the end from beginning and you have understood. If you are having any kind of doubt, you are free to give your suggestions in the comment box so that I may solve your problem. Thank you.